Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about the two most important features that denote the quality of population. Under that, we have discussed about education and health, and what are the provisions and the things that was being done or made by the Indian government for making the developments in the education and the health. Today, we are going to discuss the last and the next feature of that is unemployment or employment. As I told you about that, if maximum population of any of the country is assets, so the country will always be a developing or developed country. But if the maximum population of any of the country is liability, so that country will always go under the underdeveloping categories. So to make a person as a assets or a liability, there is a provisions in the development to make the developments in the education and health. The education and health two are the major factor that can enhance the quality of populations. If the person is educated, he or she will develop a new skills, and under the development of this new skill, he or she will get a chances to earn more and more money. And if a person is healthy enough, so that particular person can give their 100% potential work, and that can fulfill the desire of the specific for persons too. So today we are going to discuss, so the unemployment, we are going to discuss that how the employment is important. As we know that money is a very important factor to make the facility for the education and the health too. If a person is rich enough, he or she is well employed, so he or she will get a good enough money, and that money can fulfill the needs of the good education and the good health of that particular person too. So the unemployment is a crush for a society and a country that is developing country. तो अनएम्प्लॉयमेंट्स के केसेस में क्या है, ये एक क्रश है और एक कर्स है, अगर आप कह सकते हो किसी भी कंट्री के लिए. तो different types of the unemployment exist in the country. Today in this video we'll discuss about the two basic types of the employment, that is seasonal unemployment and disguised unemployment. So let's have a look. See, the Sakal's mother Sheila looked after the domestic chorus. The children helped her and husband Bhuta in the field. Sakal's brother Jitu and sister Situ spent their time paying and roaming. Can you call the Sheila or Jitu or Situ as unemployed? इफ नॉट देन वाई. देखिए, अगर हम देखते हैं शकल की स्टोरी, तो शकल की स्टोरी में शीला जो है, या उसका जो भाई है, या उसकी जो बहन है, वो सब क्या है, कहीं ना कहीं पर किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प कर रहे हैं. तो हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते. देखिए, अनएम्प्लॉयड इज सेज टू बी एग्जिस्टेड व्हेन द पीपल हु इज विलिंग टू वर्क एट गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड द जॉब. अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि एक ऐसा पर्सन है हु द पर्सन इज विलिंग और हैव अ कैपेबिलिटी टू वर्क, बट ही और शी इज नॉट गिविंग अ इनफ जॉब और इनफ सैलरी. यानी उसको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रही है और प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, तो ये कहलाएगा अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी. ठीक है. अब शीला इज नॉट इंटरेस्टिंग इन वर्किंग आउटसाइड. अब शीला जो है वो अपने आउटसाइड पे वर्क नहीं करती है. डोमेस्टिक domain, Jitu and Shitu is too small to count in the workforce of the population. Neither Jitu or Shitu can be counted in unemployed. देखिए, अब यहाँ पर क्या है, इस पूरी स्टोरी में जो भाई है, बहन है, जिसका नाम जीतू है, शीतू है, they were also helping their parents, but they are working, so we will not called them as an unemployed. ठीक है. The workforce population include the पीपल फ्रॉम 15 टू 59. देखिए, बेसिकली क्या कहा जाता है कि 15 साल से 59 एज तक की जो एज होती है, उसमें पॉपुलेशन का जो वर्क फोर्स है उसको इंक्लूड किया जाता है. सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड. अब वो इस ग्रुप एज में नहीं आते. देखिए, 6 से 14 साल तक की जो एज मानी जाती है वो कंपलसरी एजुकेशन की एज मानी जाती है. उसके बाद 15 से 59 साल या 60 साल तक की जो एज होती है वो वर्किंग एज होती है. उस एज का पर्सन अगर अगर विलिंग टू डू द वर्क है और उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ट्रीटेड एज अनएम्प्लॉयड.
सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर हो गया। सकल्स मदर शीला वर्क ऑन एन फॉर द फैमिली एंड शी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन्स फॉर पेमेंट। शी टू कैनॉट बी कॉल्ड एन अनएम्प्लॉयड। देखिए अब जो उसकी, अब बच्चों की तो बात होगी बिकॉज द बोथ आर द लेस देन 15 ईयर्स ओल्ड, तो उनको हम अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अब उसकी जो मदर है वो भी घर का काम कर रही है लेकिन वो कहीं बाहर काम नहीं कर रही है, तो शी विल ऑल्सो ट्रीट एज अ अनएम्प्लॉयड फॉर दैट। ठीक है, शी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हो गया, शी टू कैन नॉट बी एन एम्प्लॉयड। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्दो नॉट मेंशन इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड। और सकल्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते क्योंकि वो ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो 60 की कैटेगरी के बाहर जाते हैं। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। पहली चीज है द पर्सन शुड बी इन बिटवीन ऑफ द एज ग्रुप लाइक 15 टू 59, 15 से 59 साल के बीच का जितना भी पर्सन है होते हैं वो सब अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जाते हैं। बट एक कंडीशन ये होती है कि दे आर विलिंग टू डू द वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। उनकी इच्छा तो है काम करने की लेकिन उनके पास जॉब नहीं है कि वो काम कर पाए, तो उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स की बात हो रही है सकल्स की, तो उनकी एज 60 से अबव है, तो दे आर आउट ऑफ दिस। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए इन केस ऑफ इंडिया वी आर अनएम्प्लॉयड इन अ रूरल और अर्बन एरियाज, हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन द urban areas and rural areas। ठीक है, in case of rural areas there is a seasonal and disguised unemployment, urban areas has the most educated unemployed। देखिए दोनों में जैसे अर्बन यानी शहरी एरियाज और जो रूरल है यानी ग्रामीण एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट होता है, लेकिन दोनों अनएम्प्लॉयमेंट्स की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरियाज में एग्जिस्ट है उन अनएम्प्लॉयमेंट्स की दो कैटेगरीज हैं, एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि दूसरा जो होता है अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एजुकेटेड, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। द पर्सन्स आर एजुकेटेड बट दे आर नॉट गेटिंग अ जॉब सो दैट दे कैन फुलफिल देयर फैमिली, तो दे आर ट्रीटेड एज अ अनएम्प्लॉयड इन अ अर्बन एरिया। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये दो बेसिक क्वेश्चंस हैं दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए पहले हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन द पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब ड्यूरिंग द सम मंथ ऑफ द ईयर। People depend upon the agriculture usually face this kinds of problem, and there is a certain busy seasons when sowing or harvesting or weedings and threshing is done. Certain months do not provide the much works to the peoples depending on the agriculture। In case of देखिए अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे आप कह सकते हो कि विलेजेस में जो क्रॉपिंग का काम होता है वो सीजनल होता है, ऐसा नहीं होता है पूरी साल जो है वो क्रॉप होती रहे। सीजनल एम्प्लॉयमेंट ये है कि एक एग्जांपल के लिए आप ऐसे मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन को पूरे 12 महीनों में से 5 से 6 महीने जॉब मिल रही है और बाकी वो खाली है, तो दिस इज कॉल्ड द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कि वो पूरी टाइप पे अनएम्प्लॉयड नहीं है लेकिन एक सीजन आता है जिसमें वो एम्प्लॉयड हो जाता है और दूसरा सीजन आता है तो उसमें वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड seasonal unemployment। It is generally exist in a villages areas only because at the time of sowing and harvesting there is a need of a manpower and the people get employment, but this is for all around 1 to 3 months, and after this 1 to 3 months there will be no employment for that, so they become unemployed। so this is called the seasonal unemployment। ठीक है, now we'll move for the next one topic that is very much important। इस टॉपिक का उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। In case of disguised unemployment, people appear to be employed and they have the agriculture plots where they find the work. This usually happens along the family members engaged in the agriculture activity. The work required the service of the 5 peoples but engaging the 8 peoples. And 3 peoples are extra, and these 3 peoples are also work in the same plots as others, and the contribution made by the 3 extra peoples does not add it to the contribution made by the 5 peoples. So if the 3 peoples are removed, the productivity of the field will not be declined and the field required the same service of the 5 people, and the 3 extra peoples are disguised unemployment। अब देखो इसको अच्छे से समझने का द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक दैट कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी क्या है। कि अगर एक एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि वी डिसाइड कि इस पर्टिकुलर काम को करने में कितने लोग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एक मान के चलो कि किसी के गांव में उनके पापा के पास सपोज ज़मीन है। अब उस ज़मीन में सपोज दैट अगर 4 लोग काम करते हैं तो वो बहुत हैं,
लेकिन उसके सपोज दैट 5 भाई है या 7 भाई हैं और वो सब फीड उसी जमीन पे काम करते हैं, तो वो जमीन जो है वो 4 लोग आराम से कर सकते हैं, बट अननेसेसरी 3 अदर मेंबर्स कैन आल्सो इन्वॉल्व देमसेल्फ इनटू दैट। तो वो 3 जो अदर मेंबर्स हैं, दे आर लुकिंग लाइक अ एम्प्लॉयर बट दे आर डिसगाइज्ड एन एम्प्लॉयर। रीजन क्या है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जॉब कर रहा है, लेकिन अगर जॉब में वो अपना 100% पोटेंशियल्स को यूज नहीं कर पाता है, तो वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 4 पीपल्स उस पर्टिकुलर लैंड को शोइंग और हार्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे 7 वर्क कर रहे हैं, तो 3 एक्स्ट्रा जो हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। अगर उन 3 को हम वहां से हटा देंगे तब प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आएगा, सब कुछ सेम वर्क होगा। ठीक है, तो वो कहलाती है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक एग्जांपल और ले लो। फॉर एन एग्जांपल आप मान सकते हो, सपोज किसी की एक फैमिली शॉप है। अब उस फैमिली शॉप को चलाने वाले 2 लोग बहुत हैं, लेकिन उनके 5 भाई हैं, पांचों के पांचों दुकान पे बैठते हैं। अब जब 5 के 5 ऑल दिस पीपल्स आर सिटिंग ऑन द शॉप, सारे के सारे जो है दुकान पे बैठ रहे हैं, और दुकान पे बैठने के बाद क्या कर रहे हैं, वो आपका उस दुकान पे काम कर रहे हैं। तो जो काम 2 लोग कर सकते हैं, वहां पर अननेसेसरी 5 पीपल्स लगे हो, तो उनमें से जो 3 हैं उनको अगर आप हटा भी दोगे तब भी कोई काम हडल नहीं होगा। तो दे ऑल थ्रीज आर गोज अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दीज आर द मेजर थिंग्स। और नाउ अगर हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, तो अर्बन एरियाज में जनरली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बिकॉज द मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव इन अर्बन एरियाज आर जनरली एजुकेटेड। मैनी यूथ विद द मेट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर नॉट एबल टू फाइंड द जॉब। ठीक है, आप अर्बन एरियाज की कैटेगरीज में जाओ तो यही होगा कि ज़्यादातर एरियाज में आपका, अब देखिए ऑल द टॉपिक्स आर क्लियर। कि पहला टॉपिक क्या था कि रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस टाइप का है, सीजनल और डिसगाइज्ड। अब अर्बन एरियाज में क्या है, मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ज़्यादातर केसेस में जो आपके ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, तो वो सब नहीं कर सकते हैं, उनके पास जॉब नहीं है। दे आर विलिंग टू डू द वर्क बट दे आर नॉट हैविंग द जॉब, तो दिस विल गो अंडर द कैटेगरी ऑफ द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश और ऑलमोस्ट फिनिश हो गया ये चैप्टर। सो द notes of this chapter will provided you in a PDF form. ठीक है, thank you very much. If there is any query regarding this chapter or any of the questions, you can draft your query in the comment box. Thank you.